اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رات کے گہرے سائے میں جب چاند اپنی پوری آب اوتاب کے ساتھ چمکتا ہے، جب اذان کی صدائیں دلوں میں سرگوشیاں کرتی ہیں، جب زمین پر سجدے تسلی بکھیرتے ہیں، وہی وقت ہوتا ہے جب رحمت کے مہینے کی آمد ہوتی ہے، وہی لمحہ جب دل نرم پڑ جاتے ہیں، روحیں پاکیزگی کی طرف لپکتی ہیں اور ہر جانب ایک نورانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رمضان، وہ مبارک مہینہ جو صدیوں سے مومنین کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے، وہ مہینہ جس کی تاریخ بھی ایک روح پرور کہانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ ہیلو ناظرین، آپ کا ہمارے اسلامک چینل پر خوش آمدید ہے۔ ہماری پوری اسلامک ٹیم کی طرف سے آپ سبھی مومنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ماہ رمضان کے سفر پر لے جائیں گے، جہاں ہم اس مقدس ماہ کی تاریخ اور اس کے پس پردہ حکمتوں کے بارے میں جانیں گے۔ ہم گفتگو کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں رمضان کی اہمیت اور ان کی حیات میں اس ماہ کے خاص واقعات کے بارے میں، اسلام کے پوشیدہ راج، رمضان کی برکات اور وہ مخفی حقائق جو اکثر بیان نہیں کیے جاتے۔ یہ تمام چیزیں اس خاص پیشکش میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ رمضان محض ایک ماہ نہیں بلکہ روح کی تطہیر کا سفر ہے جو ہر سال ہمیں اپنی اصلیت سے روبرو کرواتا ہے۔ رمضان کی تاریخ ایک سنکشپت جائزہ۔ رمضان کی تاریخ کا آغاز عرب کے قدیم سماج سے ہوتا ہے، جہاں اسلام سے پہلے بھی یہ مہینہ مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اہل عرب چاند کے حساب سے اپنا سال مرتب کرتے تھے اور رمضان ان مہینوں میں شامل تھا جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ ان مہینوں میں جنگ و جدل سے پرہیز کیا جاتا اور عبادت میں مشغول ہونے کا رجحان زیادہ ہوتا تھا۔ سن 570 عیسوی میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے ریگستان شہر مکہ میں ہوئی، جس کے بعد سن 610 عیسوی میں جب حضور پاک 40 برس کے ہوئے تو اسی مقدس مہینے کی ایک رات کو غار ہرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پہلا پیغام پہنچایا، اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ رمضان کی وہ مقدس رات تھی جسے لیلۃ القدر کہا گیا اور جسے قرآن میں 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور رمضان ہمیشہ کے لیے ایک بابرکت مہینہ قرار پایا۔ حضرت محمد جی کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت 622 عیسوی کے دوسرے سال یعنی 624 عیسوی میں قرآن پاک فرمانے والے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اسی سال 17 رمضان کو جنگ بدر لڑی گئی جو اسلامی تاریخ کا پہلا اور فیصلہ کن مارکہ تھا۔ اس مارکے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد روزے کی حالت میں کفار مکہ کے خلاف کامیاب ہوئی۔ یہ رمضان کا پہلا تاریخی موقع تھا جب روزہ، صبر اور جہاد ایک ساتھ نظر آئے۔ سن 8 ہجری رمضان ہی کا مہینہ تھا جب فتح مکہ کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ مسلمان بغیر کسی خنریزی کے مکہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اہل مکہ کو عام معافی دے دی گئی۔ یہ فتح اسلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل تھی اور رمضان کا ایک اور تاریخی پہلو بن گئی۔ بعد ازاں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ کے ادوار میں رمضان کے دوران مساجد میں خصوصی تراویح اور تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا تھا۔ خلافت عثمانیہ میں رمضان کے دوران سماجی بہبود پر زور دیا جاتا، افطار کے لیے بڑے دسترخوان بچھائے جاتے اور پورے عالم اسلام میں خیرات و صدقات کی روایت زور پکڑتی۔ وقت بدلا، حکمران بدلے، سلطنتیں آئی اور گئی، مگر رمضان کی برکتیں ہر صدی میں زندہ رہیں۔ اندلس کے حسین محرابوں میں تراویح کی گونج سنائی دی، بغداد کے بازاروں میں سحری کی رونقیں بڑھتی رہیں، دلی کے بادشاہی محلوں میں افطار کے وقت اذانوں کی تڑپ سنائی دی۔ مگر رمضان صرف بادشاہوں اور درویشوں کا نہیں تھا، یہ ہر اس شخص کا مہینہ تھا جس کا دل اللہ کے لیے دھڑکتا تھا، جس کی آنکھیں سحری میں آنسو بہاتی تھیں، جس کی زبان
जुबान रोजे में खामोश मगर दुआ में गूंजती थी। आइए अब एक निहायत अहम सवाल पर गौर करेंगे, एक ऐसा सवाल जो हमारे अकीदे और इबादतों की हकीकत को वाज़ेह कर सकता है। क्या रोजा रखने से अल्लाह खुश होता है? हम इसे अक्सर ये समझते हैं कि अगर हम भूखे प्यासे रहेंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वो अल्लाह जो सबसे बड़ा रहमान है अपने बंदों को तकलीफ में देखकर खुश हो सकता है? क्या कोई सच्चा बाप अपने बच्चे को भूखा देख सकता है? सोचिए, अगर एक बाप अपने बच्चे को सारा दिन भूखा प्यासा देखे तो उसका दिल किस कदर तड़पेगा। वो उसकी भूख मिटाने के लिए सब कुछ कर देगा, क्योंकि वो अपने लख्ते जिगर को तकलीफ में नहीं देख सकता। और यहाँ तो बात उस रब की हो रही है जो अल्लाहु अकबर है, जो रहमान और रहीम है, जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो कैसे चाहेगा कि उसके बंदे खुद को भूखा रखकर अपने आप को तकलीफ में डालें? अगर रोजा रखने से अल्लाह खुश होता तो क्या कुरान पाक अता करने वाला खुदा ये हुक्म देता कि हम इल्म वाले बाखबर शख्स की तलाश करें? नहीं, बल्कि कुरान पाक अता करने वाला खुदा ने कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 में आयत 52 से 59 में वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि और ऐ पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा रहमान है, तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। क्या हमारी इबादतें वाकई अल्लाह की रजा के मुताबिक हैं? ये सोचने की बात है कि हम जिन इबादतों को दीन समझ बैठे हैं वो हकीकत में अल्लाह की रजा के मुताबिक हैं या सिर्फ रवाज। अगर रोजा ही इबादत की मर्ज होती तो अल्लाह हमें मुकम्मल इल्म वाले की तलाश का हुक्म क्यों देता? हकीकत ये है कि अल्लाह हमसे भूख बर्दाश्त करने की आजमाइश नहीं ले रहा, बल्कि वो चाहता है कि हम उसकी सच्ची इबादत को पहचानें, उसके बताए हुए रास्ते को अपनाएं और एक बाकरार रहबर की रहनुमाई में जिंदगी गुजारें। रमजान में जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो उसमें हमें बहुत सी ऐसी दास्तानें मिलती हैं जो हमारे लिए सीख और इबरत का सामान है। ऐसी ही एक बेमिसाल दास्तान हमें सूरत अल काफ 18 की आयत 60 से 82 में मिलती है। ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम की वाकया। जब इल्म और हिकमत का सफर अपनी हदों को पार करता है तो इंसान अपनी समझ के आखिरी मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करता है। कुरान शरीफ की सूरा कहफ आयत 60 से 82 तक हमें उस मंजिल का बयान करती है जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे ज्यादा इल्म रखने वाले एक शख्स से मिलने के लिए भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह मुलाकात हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम से हुई और यही वाकया हमारे लिए गहरे इल्मी और रूहानी पाठ का कारण बना, और 55 हदीसों में इस मुलाकात के अमल और उसका गहरा तात्पर्य बताया गया है। आज हम इस सफर में इन कीमती लम्हों को समझेंगे जब हक़ और इल्म की राह दिखाने वाला एक अजीम और गहरा तजर्बा इंसान के लिए एक अहम सबक बन गया। इस वाक़े का आगाज यूं होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रोज अपनी कौम को तकरीर कर रहे थे। किसी ने सवाल किया कि ए मूसा, आज के दिन रूए जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े फख्र से जवाब दिया, मैं। अल्लाह को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और फरमाया कि मूसा, तेरी ये बात सुनकर मुझे बेहद मलाल हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा साहिब इल्म कैसे जान कर लिया? जानुब जमीन हुए मूसा ने अर्ज किया कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे तमाम इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि आज रूए जमीन पर मेरे से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, जमीन पर तेरे से ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर भी नहीं। मूसा ने अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं उस शख्स से मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहाँ सुकूनत करता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की इनायत फरमाएं। अल्लाह ने फरमाया कि वो मजमा ए बहरैन में रहता है, यानी जहाँ शीरीं और खारे पानी के दो दरिया आपस में मिलते हैं। मूसा ने अर्ज किया कि ए अल्लाह, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तू अपने हमराह एक ज़र्फ में मुर्दा मछली ले जा, जहाँ वो मछली जिंदा होकर पानी में गोता लगा देगी, जान लो अल खिज्र तुम्हारे करीब है। हदीस तस्दीक करती है कि ये शख्स जो मूसा से ज्यादा इल्मी और जिससे अल्लाह ने मूसा को कुरान शरीफ सूरा कहफ 18 आयत 60 से 82 में मिलने के लिए फरमाया है, उसका नाम अल खिज्र है। तमाम अहले इस्लाम इस पर मुत्तफिक हैं। मूसा अपने एक शागिर्द खादिम को हमराह लेकर अल खिज्र की तलाश में रवाना हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि चाहे मुझे सदियों तक सफर करना पड़े, मैं अल खिज्र से इल्म हासिल करके ही करार पाऊंगा। तवील सफर तय करने के बाद मूसा व उनका शागिर्द मजमा-ए बहरैन के इलाके में पहुंच गए।
मूसा दराज सफर की मांदगी दूर करने के लिए एक संग का सहारा लेकर आराम फरमाने लगे। इस असना में शागिर्द ने देखा कि वो मुर्दा मछली जिसे वो एक ज़र्फ में लेकर चले थे हरकत करने लगी और जिंदा होकर पानी में कूद गई। शागिर्द मूसा को मछली के जिंदा होने की खबर देना फरामोश कर जाता है और मूसा अल खिज्र की पाने के लिए अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। तमाम रोज तमाम रात सफर करने के बाद अगली सुबह मूसा शागिर्द से मुखातिब होते हैं कि मैं सफर की थकावट से शिकस्ता हाल हो गया हूँ, ला मुझे कुछ तनावुल करने को पेश कर। तब शागिर्द को ख्याल आता है कि जो मछली हम अपने हमराह लाए थे वह तो कल जहाँ हमने आराम फरमाया था वहीं जिंदा होकर पानी में कूद गई थी और शैतान के असर से मैं आपको बताना भूल गया। ये सुनकर मूसा फरमाते हैं कि यही तो वो मकाम था जहाँ हमें ठहरना था। मूसा और शागिर्द अपने नक्शे कदम की पैरवी करते हुए वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें सफेद चादर ओढ़े हुए एक शख्स नजर आता है। मूसा ने अपना तारुफ कराया और अर्ज किया कि मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म हासिल करने के लिए भेजा है, मैं आपकी पैरवी करता हूँ, आप मुझे वो साहिबे इल्म बना दें जिस किस्म के आप हैं। जवाब में अल खिज्र ने फरमाया कि ए मूसा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म नहीं उस पर आप सब्र भी कैसे कर सकते हैं। मूसा ने अर्ज किया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी अमर में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल खिज्र ने फरमाया कि खैर, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हैं तो ध्यान रहे आप किसी शय के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में बयान ना करूं। इस मकाम से मूसा ने अपने शागिर्द को वापस भेज दिया और अल खिज्र के साथ अपना सफर शुरू किया। राह में कुछ मिस्कीन लोगों की एक कश्ती देखी। वो मेहनत करते और किराया लेकर लोगों को दरिया पार करवाया करते थे। अल खिज्र और मूसा उस कश्ती पर सवार हो गए। सफर के दौरान अल खिज्र ने उस कश्ती के तख्ते तोड़ दिए और कश्ती में पानी दाखिल होने लगा। लोग पानी खारिज करने लगे और जैसे तैसे गर्कन होने से बचे। ये देख मूसा ने इसे नापसंद फरमाया और अल खिज्र से मुखातिब हुए, क्या लोगों को गर्का करने का इरादा है? इस पर अल खिज्र ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही अर्ज किया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि मेरी अक्ल ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे माफ फरमा दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वह दोनों आगे बढ़े और एक नौजवान से मिले। अल खिज्र ने उस नौजवान को कत्ल कर दिया। ये देखकर मूसा फरमाने लगे, क्या आपने एक मासूम की जान ली और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं? ये तो आपने बड़ी नाशाइस्ता और बेहद नापसंदीदा हरकत की। इस पर अल खिज्र ने फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया कि अब अगर मैं आपसे किसी शय के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ ना रखिएगा, यकीनन आप मेरी तरफ से हद उज्र को पहुंच चुके हैं। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। दोनों एक बस्ती में पहुंचे और मूसा ने खाने के लिए पूछा। बस्ती वालों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से साफ इनकार कर दिया। उस बस्ती में दोनों ने एक दीवार को देखा जो गिरने के करीब थी। अल खिज्र ने उसे दुरुस्त कर दिया। ये देखकर मूसा फरमाने लगे, आप चाहते तो इसकी उजरत कीमत हासिल कर सकते थे जिससे हम खाना तनावुल कर सकते थे। अल खिज्र ने मूसा से फरमाया, बस अब आपके और मेरे दरमियान जुदाई है। अलविदा कहने से पहले मैं आपको उन वाकयात की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सके। कश्ती कुछ गरीब मिस्कीन लोगों की थी जो दरिया में कामकाज करते थे। मैंने उसमें कुछ खराबी पैदा करने का इरादा किया क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक दुरुस्त कश्ती को जबरन जब्त कर लेता। एक अदद खराबी होने की वजह से वो बादशाह उनकी कश्ती को जब्त नहीं करेगा और वो मिस्कीन कुछ पैसे लगाकर उसे दुरुस्त कर लेंगे। दूसरे वाकये के बारे में बताया कि उस नौजवान के माँ बाप अल्लाह को चाहने वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये लड़का उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज और परेशान ना कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उससे बेहतर पाकीज़गी वाला, उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला बेटा अता फरमाए। दीवार का कस्सा ये है कि इस बस्ती में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बहुत नेक था। रब की ये चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना उस रब की मेहरबानी और रहमत से बरामद करें। इन तीनों वाकयात की मुहम्मल वजाहत के बाद अल खिज्र एक अजीम नुक्ता बयान करते हुए फरमाते हैं कि ए मूसा, ये थी असल हकीकत उन वाकयात की जिन पर आप सब्र न कर सके। सूक्ष्म वेद, कलाम कबीर, कबीर वाणी के अलावा किसी मजहबी किताब में मुकम्मल रूहानी इल्म मौजूद नहीं है। सबूत, हिंदू मजहब की अहम किताबें 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं। उनका खुलासा यानी मुख्तसर इल्म श्रीमद् भगवत गीता है। इनका इल्म भी उसी अल्लाह ने अता फरमाया है जिसने चारों किताबों जबूर, तौरात, इंजील तथा कुरान का इल्म अता किया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वेद इल्म देने वाले ने फरमाया है कि कोई तो परवरदिगार को कभी पैदा न होने वाला यानी बेशक्ल बताता है। कोई पैदा होने वाला शक्लदार मानते हैं, जैसे राम कृष्ण की विलादत हुई, इनको रब मानते हैं। खुदा बेशक्ल है या शक्लदार है, पैदा होता है या पैदा नहीं होता है, अवतार धारण करता है या नहीं करता। इस बारे में धीराणाम हकीकत देखने वाले बुजुर्ग सच सच बताते हैं, उनसे सुनो। खास बात, साबित हुआ कि वेदों में
मुकम्मल रूहानी इल्म नहीं है। हिंदू मजहब के लिए चारों वेद अहम व काबिल एतबार किताबें हैं। उनका जो मुख्तसर गीत पढ़ा जाता है, गीता का इल्म भी उसी रब अल्लाह ने दिया है जिसने चारों किताबों जबूर, तौरात, इंजील तथा कुरान का इल्म दिया है। हिंदू आलिम मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सार है। इसी गीता के अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्राह्मण कामिल ब्रह्म मुख्य अपने मुबारक मुख से कलाम करके हकीकी इल्म फैलाता है। उनकी उस वाणी में बताया इल्म तत्व ज्ञान कहा जाता है। फिर गीता अध्याय 4 के ही श्लोक 34 में कहा है कि ए अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो कुदरत का मालिक अपने मुख से कलाम करके बताता है, तू किसी हकीकत जानने वाले बुजुर्गों से दरियाफ्त कर। झुककर सलाम करके आजिजी के साथ सवाल करने से वो तत्व ज्ञान जानने वाले दानिशमंद वली तुझे हकीकी इल्म की तालीम देंगे, क्योंकि वही सच्चा इल्म, वही ताकतवर रब वक्त वक्त पर अच्छी रूहों को बताता रहता है। इसलिए कहा है यह इल्म इस जमाने में सिर्फ बाखबर संत रामपाल जी महाराज के पास है, बाकी दुनिया में किसी को उसका इल्म नहीं है। खास बात, इससे साबित हुआ कि मुकम्मल रूहानी इल्म श्रीमद् भगवत गीता में भी नहीं है। बाइबल जो जबूर, तौरात तथा इंजील तीनों किताबों का मजमुआ है, इस बाइबल में तथा कुरान में भी मुकम्मल रूहानी इल्म मौजूद नहीं। सबूत ऊपर अल खिज्र अल कबीर की जानकारी में बताया है कि जिस अल्लाह ने पाक किताब जबूर का, पाक किताब तौरात तथा पाक किताब इंजील का इल्म दिया है, उसने हजरत मोहम्मद जी को भी बताया, जो पाक किताब कुरान की सूरह काफ 18 आयत 60 से 82 में दर्ज है कि मैंने मूसा को वह इल्म हासिल करने के लिए एक शख्स के पास भेजा जो इल्म मूसा को नहीं था। उस इल्म के सामने मूसा का हासिल किया हुआ इल्म किताब तौरात कुछ भी अहमियत नहीं रखता। मूसा जी उस इल्म को हासिल किए बिना ही खाली वापस आ गए थे। इस वाक़े से कई बातें जाहिर होती हैं। नंबर 1, वह इल्म तौरात किताब में नहीं है। अगर होता तो अल खिज्र के पास इल्म हासिल करने के लिए भेजने की जरूरत ही नहीं थी। नंबर 2, पाक जबूर, पाक तौरात तथा पाक इंजील का इल्म इसी अल्लाह ने बाल तरतीब हजरत दाऊद, हजरत मूसा तथा हजरत ईसा को एक ही मर्तबा में दिया था, यानी कुरान के इल्म की तरह थोड़ा थोड़ा करके नाजिल नहीं किया था। हजरत मूसा जी तौरात के इल्म का तबलीग कर रहे थे, उसी इल्म का सत्संग कर रहे थे। सत्संग के दौरान किसी सत्संगी ने पूछा था कि ए मूसा, मौजूदा जमाने में दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? मूसा ने अपने आप को दुनिया में सबसे आलिम बताया था, जिससे मूसा जी के अल्लाह जी ने फरमाया था कि तेरा इल्म अल खिज्र के इल्म के सामने कुछ भी अहमियत नहीं रखता। इससे साबित हुआ कि तौरात का इल्म अधूरा है। नंबर 3, अगर जबूर किताब में मुकम्मल इल्म होता तो अल्लाह कह देता कि जबूर वाला इल्म तेरे इल्म से बेहतर है, वह उस अध्याय में दर्ज है, इसलिए ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। इससे साबित हुआ कि जबूर का इल्म भी अल खिज्र के इल्म के बराबर नहीं है। नंबर 4, अगर इंजील में मुकम्मल इल्म होता तो हजरत मोहम्मद को अल्लाह कह देता कि अल खिज्र वाला इल्म मरियम के बेटे ईसा को इंजील में दे रखा है, लेकिन ये भी कहीं सबूत मौजूद नहीं है। इससे साबित हुआ कि पाक किताब इंजील में भी अल खिज्र अल कबीर वाला इल्म नहीं। इस दास्तान में हमारे लिए कई अहम सबक छुपे हुए हैं। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है। इल्म एलद्दुनी गैबी इल्म सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को मिलता है। मौजूदा वक्त में वो खास शख्सियत संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके पास अल्लाह का वो गैबी इल्म है। नाजरीन, कुरान पाक में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिनका राज अब तक आम लोगों पर नहीं खुला था। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में सूरह अश-शूरा 42 की इब्तिदाई आयत में ये अल्फाज आते हैं, हाँ मीम आयत 1, एन सीन काफ आयत 2। ये अल्फाज अपने अंदर एक निहायत गहरा राज लिए हुए हैं। कुरान के तमाम मुफस्सिरीन इस राज को बयान करने में नाकाम रहे हैं। आखिरकार उन्होंने कह दिया कि इसका सही मतलब सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन सोचने का मकाम है, क्या अल्लाह ने ये अल्फाज महज एक राज के तौर पर कुरान में नाजिल किए थे? अगर इनका मतलब जानना जरूरी न होता तो ये कुरान का हिस्सा क्यों बनते? ये वो सवाल है जिसका जवाब सदियों तक इंसानियत के लिए पोशीदा रहा, मगर आज के दौर में वो मुकम्मल इल्म बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने बयान किया है, जो इन अल्फाज के असली मनी को वाज़ेह करता है। बाखबर संत रामपाल जी महाराज फरमाते हैं कि ये अल्फाज दरअसल नजात का वो खुफिया राज है जिसे बगैर मुकम्मल वली के जानना नामुमकिन है। आप फरमाते हैं कि इल्म का फायदा तभी है जब उसके साथ मसले का हल भी पेश किया जाए। फर्ज कीजिए एक शख्स किसी मरीज से कहे तुम्हें ये बीमारी है, इसके ये लक्षण हैं। अगर मरीज को ये मालूम हो भी जाए कि उसे कौन सी बीमारी है, लेकिन अगर उसे ये न बताया जाए कि उसका इलाज क्या
है तो फिर उस इल्म का फायदा क्या हुआ? ठीक उसी तरह अगर कोई शख्स कुरान करीम की सारी तालीमात को पढ़ भी ले, उन्हें याद भी कर ले, मगर वो उन 5 अल्फाज का असली मतलब न समझे जो नजात का राज अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो फिर महज इल्म हासिल करने से नजात कैसे मुमकिन हो सकती है? बाखबर संत रामपाल जी महाराज फरमाते हैं कि ऐन सीन काफ के 3 हरूफ दरअसल 3 खुफिया कलिमों मंत्रों का इशारा है जो इंसान को नजात दिलाने वाले असल अल्फाज हैं। हाँ, मीम का ताल्लुक अल्लाह के उस खास हुक्म से है जो इंसान को नजात के रास्ते पर ले जाता है। ये वो पाक नाम है जिन्हें बगैर मुकम्मल वली के पाना मुमकिन नहीं। यही वो अल्फाज हैं जिनके इल्म के बगैर नजात का हासिल होना नामुमकिन है। नजात का हकीकी रास्ता मुकम्मल वली यानी बाखबर से नाम दीक्षा लेना। नाजरीन, हमारे मुर्शीद बाखबर संत रामपाल जी महाराज फरमाते हैं कि नजात के लिए मुकम्मल वली यानी पूरन संत से दीक्षा लेना जरूरी है। वही मुकम्मल वली वो पाक नाम अता करता है जिसका इशारा कुरान पाक में ऐन सीन काफ सांकेतिक अल्फाजों में बताया गया है। वही मुकम्मल वली वो अमल सिखाता है जो इंसान की रूह को जन्नत के मुकाम तक पहुंचा सकता है। बगैर इस रहस्य को समझे चाहे मुसलमान सारी नमाज या रोजा रखकर इबादत करे, वो नजात हासिल नहीं कर सकता और ना ही खुदा कबीर परवरदिगार की जन्नत में जा सकता है। नाजरीन, कुरान का हकीकी मकसद इंसान को खुदा कबीर जी का सही रास्ता दिखाना। कुरान पाक महज नेकी के अमल की तालीम नहीं देता, बल्कि ये इबादत का मुकम्मल तरीका भी पेश करता है। ये मुकम्मल तरीका आज के दौर में बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने खुलकर बताया है। ऐ मोमिनो, अल्लाह कबीर जी हमें इस हकीकत को समझने और सही रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये वाकया हमें सिखाता है कि कई बार हमारी जिंदगी में होने वाले वाकयात के पीछे ऐसी हिकमतें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। इसीलिए इंसान को हर हाल में सब्र और भरोसे के साथ अल्लाह कबीर जी पर ईमान रखना चाहिए। माह रमजान का असली पैगाम भी यही है, अपने नफ्स को काबू में रखते हुए अल्लाह कबीर जी की मर्जी पर सब्र और यकीन करना। यही वजह है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसे हिदायत याफ्ता शख्स को तलाश करने का हुक्म दिया है जो हमें सच और झूठ में तमीज सिखा सके, जो हमें असल इबादत का माफहूम समझा सके। इस्लाम ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी ऐसे शख्स को तत्वदर्शी संत कहा गया है, यानी वो जो हकीकत से वाकिफ हो। रोजा नहीं, सच्ची इबादत अल्लाह की रजा का जरिया है। सोचने की बात है, क्या हमने कभी कुरान को गहराई से पढ़ा? क्या हमने कभी अल्लाह के पैगाम को समझने की कोशिश की? हम दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने गौर किया कि अल्लाह असल में हमसे चाहता क्या है? वो हमसे भूख नहीं बल्कि सच्चाई का रास्ता अपनाने का तकाजा करता है। वो हमसे रोजा रखने की जिद नहीं करता, बल्कि ये चाहता है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें, सच्चे दीन को पहचानें और उसकी दी गई हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। फैसला आपके हाथ में है। भाइयों और बहनों, अब ये आप पर मुनहसर है कि आप सिर्फ रिवाजों के पीछे चलना चाहते हैं या फिर हकीकत की तलाश में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ रस्मों में उलझकर अपनी आखिरत को दांव पर लगाएंगे या फिर वो रास्ता अपनाएंगे जिसे कुरान ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है? ये दुनिया फानी है, लेकिन इसमें किए गए फैसले अब्दी नतीजे रखते हैं। अगर हमने गलत रास्ता अपनाया तो उसका खामियाजा हमें हमेशा भुगतना होगा। इसलिए जरूरी है कि हम असल दीन को पहचानें, अल्लाह की रजा का हकीकी जरिया तलाश करें और इल्म वाले बाखबर शख्स की रहनुमाई हासिल करें। ये वक्त है जागने का, सोचने का और अल्लाह के असल फरमान को समझने का। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम सच के रास्ते पर चल सकें और उसकी हकीकी रजा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अब हम आपको बाखबर संत रामपाल जी महाराज के मुबारक प्रवचन से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये वही बाखबर हैं जिनके बारे में कुरान अता करने वाले अल्लाह ने कुरान शरीफ की सूरह अल फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में फरमाया है। आइए इनके इल्म को सुनकर हकीकी इबादत को अपनाएं और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं। कहते हैं मुल्ला को बंग सुनावे ना बहरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वह पायल कैसी बनेगी? पहले तो चीटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध दे, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती, उसकी भी यदि आवाज होती है आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चिट्टी की पैर के पायल की भी पैर सुनता है।
तो उस रुक के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़ कर बंग आवाज देना, वो बहरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, वहां तो नहीं है दारा। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और श्याम ने झोटा बकरा मारा, श्याम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी, दिन में भक्ति रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो, इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं है। अब क्या बताते थे कबीर साहब, कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं, मुसलमान तो कहते हैं हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं, और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र, कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की इन गर्दन पर, और प्यार से उसका जीवन अंत करते हैं। और उधर से मुल्ला जो है का पुकार करता है, अल्लाह हे भगवान, हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता है बकरे का मांस, तो वो सोचते हैं, कहते हैं। और बकरे की आत्मा विष चली जाती है स्वर्ग में। और परमात्मा कहते हैं, कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई, अगर इस विधि से इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आपने कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई, अपने परिवार ने करके देखा, इस तरह स्वर्ग भेजो, जब मानो तुम्हारी बात सही है। पुण्यात्माओं, स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं। ऋषि राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको अभी तक, तो अब सतलोक सचखंड का तीव्र ज्ञान हो अपने को। अभी पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने, और उसकी प्राप्ति। और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है, बकरी की नाड़ काटने से कलमा पढ़ जाता है। अगर ये सत्य होता तो सबसे पहले अपने कुणबे की करते तुम, परिवार की, दूसरे का नंबर कोई ना आने दे। जैसे आप जी ने कहीं जाना है ट्रेन से और रिजर्वेशन करा रखी, टिकट बिल्कुल फाइनल है, आप अपनी टिकट पर किसी बकरी बैठा के दिखाओ उस रेल में जब जाना, तो कहने का भाव ये है कि अगर ये ऐसे स्वर्ग मिलता तो बकरा का नंबर कौन आने दे, भले पुरुषो तुम झूठ बोल रहे हो। कहते जय या रूत बिस्त पठाई, कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कूके इस बकरे की रूह को, या अल्लाह स्वर्ग में बिस्त में स्थान देना। परमात्मा कहा करते जैसे तेरे बाप का नौकर है भगवान, और तेरे कंधे इसने स्वर्ग में स्थान दे दिया बकरे की आत्मा को। अरे भले पुरुष, कहते एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकार है भूखा, एक तो मुल्ला ऊपर आवाज लगा रहा है ओ अल्लाह अकबर, अरे एक वो रो रहा अपनी जान ने, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो उधर रो रहा है, वो ऊपर पुकार रहा है। एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकार है भूखा, इनमें कौन स्वर्ग में जागा, आमने लग गया धोखा, दोनों को धोखा लगा ये। और जय या रूते बिस्त पठाई, कर तदबीर कबीला भाई। तो इन बातों से दुखी हो गए वह काजी और मुल्ला भगवान के शत्रु बन गए। उधर से हिंदुओं को कहा करते थे वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बादशाह पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। कहते जाको तो तुम मुक्ति कह तो ये है कच्चे 12। पहले शतरंज का खेल होता था, उसमें पक्के 12 और कच्चे 12। कच्चे 12 तो यूजलेस होते थे, जब जीख्या हुआ बोला करता कच्चे 12, उसका कोई बेनिफिट उस खेल में उसको नहीं मिलता था। तो यहां कहते हैं कि तुम जो साधना करे तो कच्चे 12 हैं, यानी यूजलेस है ये साधना।
क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंची वसूली चढ़े मंसूर। और शेख फरीद कुएं में लटके हो गए चूरम चूर, सुल्तानी तज गए बलक को छोड़ी 16 सेंसर हूर। गोपी चंद भरतरी योगी शर्मा डारी दूर, और दादू दास सदा मतवारे झलमिल झलमिल नूर। जन रह दास कबीर कमाला सन्मुख मिले हजूर, और दोनों दीन मुक्ति को चावे और ये खावे गऊ और सूर। दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरम पूर। अब कितनी प्यारी बात कही है कि तुम जैसे बकरे को काट देने से या जैसे रोज ये श्राद्ध सरूद निकालते हैं या ये पत्थर की पूजा करने से मोक्ष होता, ऐसा नहीं होता। और तुम फिर हिंदू तो कहते हैं कि हम जैसे बकरा या सूअर ऐसे काट देते हैं झटके से, इसको दर्द नहीं होता। और मुसलमान काटते हैं उसको तड़फा तड़फा के मारते हैं, उसका पाप लगता है। और हम एकदम काट देते हैं, हमें पाप नहीं लगता। परमात्मा कहा करते कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गऊ और सूर। वह गऊ खाते हैं मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे हैं, चाहे सूर न मार दो और चाहे गऊ को मारो, दोनों का पाप समान है। तुम गलती करते हो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए भगत ने, तुम गलती करते हो। तो फिर क्या कहते थे कि दोनों धर्म तक मुक्ति चाहो और खाओ गऊ और सूर। तो ऐसे भक्ति ऐसे मोक्ष नहीं होगा। और परमात्मा कहा करते यदि आप मानते हो, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम तो कलमा बोल के और प्यार से काटते हैं, हलाल करते। तो परमात्मा कहते थे कि बकरे की तो जान गई, चाहे झटकत मार दो और चाहे न्यू काट दो। ला तुम कटवाओ, कुकर कटवाओगे, न्यू काट दूंगा। ला तुमने फिर सारे पीछे पीछे हटे, पाप तो लगे नहीं, कोई सा स्वर्ग में जाओगे दोनों ही। तो अपना नंबर आता है ना जब दर्द होता है इंसान को। तो परमात्मा हमें इस प्रकार समझाया करते थे और फिर ज्ञान समझाते थे। इस बात का उन्होंने अपने लालचवश परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि दुश्मन बनते चले गए। क्या बताते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सुन काजी राजी नहीं ये आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाए। गऊ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, गरीबदास जुल्लाह काजी गरीबदास काजी कुटल तो कत्ल किया औजूदे। नाजरीन तशरीफ लाएं और बाखबर संत रामपाल जी महाराज के मुकद्दस लफ्जों से निकली अमर ग्रंथ साहिब की पाक वाणी से फैज हासिल करें, जो हमारी रूह को पाकीज़गी अता करते हुए हमें एक अलग ही सुकून और फायदा पहुंचाती है। अथ मोहम्मद बौद बिले मान विस्तार बिला का नोद उदर घर संजम ताका, जाके भोग मोहम्मद आया नोज उदर घर मोहम्मद जाया। ऐसा जान मोहम्मद पीरम जिन मारी गो शब्द के तीरम, शब्द फेर जवाई जिन गोश्त नहीं बाख्या हंसा राख्या। ऐसा पीर मोहम्मद भाई, पीर मोहम्मद नहीं बस्त सिदाना, पीछे भूला है तुर्काना। गोश्त खाई नमाज गुजारे, सो को करे बिस्त सिदारे। एक ही गूद एक ही गोश्त सूर गऊ की एक जाति, एक जीव साहिब को भेजा दोहू में एक राती। एक चाम एक ही चोला गूद हाड की काया, भूला काजी कर्ज चलावे कदरब को फरमाया। काजी कौन कतेब तुम्हारी, ना तू काजी ना तू मुल्ला, झूठा है व्यापारी। काजी सो जो कजान बेड़ हक हलाल पछाने, न्याय करे दर हाल दुनी का नीर अखीर को छाने। मुल्ला सो जो मूल मिलावे,
دل میں رم دل بیچ دکھاوے، سو ملا مستاکی سو تو ملا بست سدار ہے، اور ملا سب خاکی۔ مسلم کہے ہندو کا پھر پوجے آن انیت، ان کو کہو کیا کہیے جو پوجے گھور مسیت۔ کلمہ روزہ بنگ نمازا آپ اللہ فرمایا، روزے رہ کر مرغی ماری یوں کیا پنتھ چلایا۔ ہے روزے سے راہ نرالا کلمہ کال گراسا، کک بنگی بدھی ورشٹ ہے کرو نماز آکاسا۔ وجو اجول وستو ہونا کن بقرعید عید فرمائی، جب مسلمان مسافر ہوتے کیا درتے سنت آئی۔ قوم چھتیسم ہے جگدیسم برم بیج ایک باڑی، سو ہندوانی سو مسلمانی پہرے ایک ساڑی۔ ادھر بیچ کہاں تھا کلمہ کا سنت ایک تانا، باپ ترک اور ماتا ہندوانی سو کیوں کر مسلمانہ۔ انڈا سہجے کین تماسا انڈے کے گلنا ہی، جا میں پانچوں تتو اکہتر نورم تا پر کہاں چھری چلائی۔ کا پھر سو جو کرد چلاوے ہنسٹر پڑے تالا، ایسے 300 روزے جاہیر ساتل بیشت بیچ منہ کالا۔ کا پھر سو جو کرد کلینا ہن چھوڑ کر بکھے ملینا، ہنس حساب میں لے گا جو گل کاٹے میلا چاٹے سوئی بدلا دے گا۔ من ہی ماہی مناور تکیا دل بیچ تیبر کھانا، دل ہی میں رام رسولہ بیٹھے دل ہی سے دل جانا۔ بیچ گون نہیں ہے صاحب نراکار سربنگی، سکل ویاپی سوئی جنداس غریب کہے رے سنتو سور گو نہیں دوئی۔ ناظرین، ہمارا مقصد آپ کو کسی پرکار سے پریشان کرنے کا نہیں ہے، لیکن سچائی سے روبرو کروانا ضروری ہے، اپنے سچے خدا کی راہ بتانا۔ آپ ہمارے بھائی بہن ہو، ہماری روح ہو، ہم سے جڑے ہو، آپ سب اس ایک سب سے بڑے اللہ ہوں اکبر کے بچے ہو، اور صحیح راہ دکھانا باخبر سنت رامپال جی کا مقصد ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ ضرور ہمارے نسوارتھ اور پرمارتھ کے کاریہ کو مانو گے، سمجھو گے اور اپنا کلیان کرواؤ گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ابھی بھی کوئی شنکا ہے یا آپ ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھ دیجئے، ہماری ٹیم آپ کے سوال کا جواب ضرور دے گی۔ اگر آپ اپنی شنکاؤں کے سمادھان کے لیے ہم سے سیدھے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان فون نمبروں پر ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو اسلام مذہب اور قرآن پاک کی آیتوں کی صحیح ترجمانی کو اچھی طرح سے اور سرل بھاشا میں جاننا ہے تو اس پاک کتاب مسلمان نہیں سمجھے گیان قرآن میں سبھی شنکائیں سمول سماپت کی گئی ہیں۔ کرپیا دل تھام کر دھیریہ کے ساتھ پڑھو گے تو دانتوں تلے انگلی دباتے رہ جاؤ گے۔ لیکھک باخبر سنت رامپال جی مہاراج نے اس پستک کو یتھارتھ سمپورن ادھیاتم گیان سے پرمانوں سہت لکھا ہے۔ اگر آپ اس پستک کو منگوانا چاہتے ہو تو نمن فون نمبروں پر ہمیں اپنا نام پورا پتہ بھیجیں۔ آپ کو مسلمان نہیں سمجھے گیان قرآن کتاب آپ کے گھر تک فری میں پہنچائی جائے گی۔ الله أكبر كبيرا